जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक ਦੀ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਰੀਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਏ ਟਾਈਮਲੈਸ ਵੌਇਸ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਮਲੈਸ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਖਾਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੁੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਫਰੋਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਉਸਨੇ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ the Rome was not built in a day। ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਉ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਭੇਜੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਏ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਕਿ ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ,
जिहड़ा ये समझे कि सारे उस एक दी औलाद ने और ये धरती उसकी बनाई हुई है, इसनूं जितने समय उसने भेजा है और असी किवें इसनूं सुखद बनाना है। लेकिन उस तो उलट जिहड़ा गुरु साहब कहते हैं कि जो परमात्मा का माया जाल है वो मनुख नूं भरमाउण दा है, और उस भरम दे विच मनुख ये समझ बैठदा है कि ये परमात्मा का बनाया होया जिहड़ा है उहदे विच अपनी मैं नूं इतनी वड्डी जगह दे दिंदा है कि उसकी मैं ही उसनूं अपने आप तो दूर करके उसके जीवन नूं दुखद वाले पासे लैके जाती है। और एक समाज का सिस्टम हुंदा है। गुरु साहब ने एक सिस्टम की गल की सी कि सिस्टम नूं ही बेगमपुरा कहा, सिस्टम नूं ही सतजुग कहा, कि वो सिस्टम क्रिएट करना है किन्ना लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर ने समझ दी है, क्योंकि ये उसकी है, उसकी दी हुई है, तो उसकी धरती है। इस करके गुरु साहब कहते ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्त्या सब किस तेरा भाना, ना को ऊन ना कोई पूरा, ना कोई सुख ना कोई मूरा। कि एक परमात्मा का माया जाल है जिस भरमा के वो ये महसूस करा दिंदा बंदे नूं कि मैनू ज्यादा समझ है, और उस समझ के आधार पर वो राजा बन के बैठ जाता है और फिर अपनी मनाइयां करता है। इसनूं गुरु साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा मनुखता नाल धोखा है। समझ उसे नूं कहा जिहड़ी कि उस मनुख नूं विद्या विचारी तां परोपकारी, जिन्हें परमात्मा की विद्या का विचार करना है, गुरु साहब कहते हैं वो परोपकार वाले पासे वध जाता है। तो इस चीज नूं आधार लैके, इस चीज नूं आधार लैके कि सो पढ़िया सो पंडित बिना जिनी कमाना नाउ, असीं गुरु साहब की बाणी के आधार से एक विचार संतां के सामने रख रहे हैं, जिस नूं कि असीं ये दिता है कि भाई गुरु नानक साहब चाहते सी कि जो जो मनुख नूं समझ आवे तो इस धरती नूं स्वर्ग बना देवे। ये ऐसी धरती बन जाए कि मनुख नूं लगे कि मैं स्वर्ग दे विच ही रह रहा हाँ। तो उत्थे आपां जिहड़ा शुरुआत की है, तो आपां संतां दे नाल इसनूं एक कंटीन्यूटी दे विच कोशिश करांगे कि आपां जो लिखिया है उसनूं दस्सेगी तां संगत ही कि ये किस लैवल ते ये प्रैक्टिकल हो सकता है। क्योंकि जो असी जो परमात्मा मालिक ने महसूस कराया सो लिखने की कोशिश की है और इसनूं कलमबद्ध करने की कोशिश की है, और उसका लगातार वर्क भी उसते किया है। 4 साल तो संतां नूं जदों ये महसूस होया कि साडे गुरु साहब भी साडे रब राजा ते लीडर, क्योंकि जदों असीं देखते हैं कि हर स्टेज ते हर वक्ता ये कहता है जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जाग दी जोत, हाजरा हजूर चेहरा जहूर सर्व कला भरपूर। तो ये चीज जदों प्रैक्टिकल महसूस होगी कि वो यही है, गुरु साहब यही ने, तो उस प्रैक्टिकल महसूस होने विचों जो निकलिया फिर ये लग्या कि जदों गुरु साहब की हाजरा हजूर ने, जहरा जहूर ने, सर्व कला भरपूर ने और प्रैक्टिकली है ने, लेकिन उसनूं अपनी जिहड़ी हौमे है वो उस गल नूं गुरु साहब नूं वड्डा करके अपनी हौमे नूं छुपा के वड्डा करना, एक सिस्टम जिहड़ा है ये गुरु साहब के सिद्धांत तो उल्ट जिहड़ा है वो साडे गुरु घरां चलिया होया है, जिस करके उत्थों फीडिंग गलत हुंदी है और अगे फीडिंग गलत हुंदी चली जाती है। तो किसी ना किसी रूप में वो जिहड़ी हौमे है वधदी चली जाती है, क्योंकि गुरु साहब ने दस्सिया सी कि भाई ये हौमे हर तरह नाल ही सूक्ष्म हौमे किस ढंग दे नाल मनुख दे विच वध जाती है, एक मनुख नूं खुद भी पता नहीं चलता, और वो सुते सिद्ध ही सही चलता होया वो सोचता है कि मैं सही चल रहा, लेकिन किसी ना किसी रूप में हौमे का शिकार हो जाता है। और फिर जिहड़े सही मनुख हुंदे ने वो मनुख जिन्हां नूं वहम हो चुका हुंदा सही होने का, और जिहड़े असल में सही हुंदे ने ये दोहां दा पाड़ा वध जांदा है, और जिहड़ा असल में सही नहीं है हौमे का शिकार हो चुका है वो वड्डा बन के बैठ जाता है। बहुत सारिया उदाहरण गुरबाणी ऐसिया सुनने मिलदियां ने। उन्होंने गुरु साहब ने राजे सिंह मुकदम कुत्ते बहुत सारिया उदाहरण, पंडित ब्राह्मण ये सारे इन्हां चों ये भी गुरु साहब ने कहा हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी शूर हम दाते इविद कवे ननासी। कि ये बुद्ध जिहड़ी अंदर बैठी रहिंदी है कि हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी शूर हम दाते इविद कवे ननासी, कौरवदास सबै नहीं समझे भूल परे जैसे बहरे। और वो फिर जिहड़े ने वो भुल जाते ने और बोरे होए होए समाज नूं बौरा
बना देंदे ने। तो ये जिहड़ा गुरु साहब ने जो ये इस तरह का सिद्धांत दिता है, यही बेगमपुरे का, इसनूं ही हलेमी राज कहा गया है कि हलेमी राज सब सुखाली बुठियन हर हुआ हलेमी राज जियो, कि वो सारियां दे सुख इस हलेमी राज दे नाल ही कि मनुख नूं समझ होवे, पर उस दे अंदर हलेमी इस तरह दी होवे जिसनूं गुरु साहब ने धर्म का रूप दिता है शुरू विच ही, कि धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जनसूत, कि धर्मी मनुख की पहचान गुरु साहब ने कहा, धर्म का नाम देंदे ने कि ये धर्म है कि करण बखीली आप च राम रही मिक थां खलोई, राह शैतानी दुनिया गोई। कि शैतानी दे राह नूं धर्म का रस्ता समझ रहे ने, रब नूं वंड के और अपने आप नूं एक दूजे तो छोटा वड्डा दिखाना, और फिर रब दे नां ते अपनी अपनी वो गल्लां क्रिएट कर देनियां जो बंदे नूं बंदे तो दूर करन। जो भी पीर पैगंबर आए संदेश सारियां दा एक सी, क्योंकि परमात्मा ने फर्क नहीं सी पाना, परमात्मा ने सारियां नूं जैसा दस्सिया। अगे जिहड़ी आपां पिछले वीक पहले सैशन विचार की सी कि हरना बाजां ते शिकदारां इन्ना पढ़िया नाओ, फंद दी लगी जात फायन अगे नहीं थाऊं। ते गुरु साहब ने कहा कि जिहड़े इस लैवल ते, क्योंकि परमात्मा ने अपना खेल नाल नाल परमात्मा का खेल चलता पाया, और उत्थे जिहड़ा सी गुरु साहब कहा कि जदों जदों डिवेलपमेंट मनुख ने की उसनूं ये समझ आई, तो उस समझ दे विच उसने जिहड़ा सी हरना बाजां ते शिकदारां इन्ना पढ़िया लाओ, ते जिन्हां जिहड़े सियाणे सी वो फिर छुप गए, क्योंकि सियाणप जिहड़ी है वो ज्यादातर गुरु साहब कहंदे ने कि अपने आप नूं आप सवारी मैं मिले, वो गुरु साहब कहंदे ने मत हुंदी होए आना, तान हुंदे होए निताना, अणहुंदा आप बुलाए कोई ऐसा भगत सदाए। कि भगती वाल मनुष्य जदों परमात्मा दे वाल जुड़दा है वो इंट्रोवर्ट हो जाता थोड़ा जिहा, और इंट्रोवर्ट होने तो बाद उसका मन उच्चा हो जाता है, उसका मन नीवा हो जाता है, मत उच्ची हो जाती है। और जिस वेले मत उच्ची हुंदी है तां उस वेले फिर जिहड़ा है वो मन जिहड़ा निम्रता च आ जाता है, और जिहड़े वो हरना बाजां ते शिकदारां जैसे लोग ने वो फिर उसनूं जिहड़ा राजनीति के तौर पर या धर्म के आगू बन के उस ऐसे मनुखों को काबू कर लेंदे ने। तो इस तरह गुरु साहब ने जो मैनू दास नूं महसूस होया कि 99% लोगों की आवाज़ उठाई, और उन्होंने ये दस्सिया कि सिर्फ 1% लोग जिहड़े ने वो धर्मां के आधार पर या राजनीति के आधार पर इस मनुखता नूं वंडदे ने, और वो सारा ही सिद्धांत जो कंसैप्ट एक परमात्मा का कंसैप्ट दिता सी, और उसनूं लभण का कंसैप्ट भी गुरु साहब ने बाकियां नालों वखरा दिता। होरां ने जितने भी सिद्धांत दिते सी वो सारियां नूं गुरु साहब ने हटा के कि ये सारे ही जिहड़े ने मनुखता नूं वंडण वाले ने, और एक दस्सिया सी कि सारे ही अपने आप नूं सब कहते हैं पाया, काट ना किनी कहाया। वो पिछले प्रोग्राम में विचार किया सी कि कितना वड्डा शब्द है जो गुरु साहब कहते हैं, ज्ञानी ज्ञान कमावे ध्यानी ध्यान लावे प्रभ की नहीं जाता, भगवती रह जुगता जोगी कहत मुक्ता, मुनि मून तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास रहता, भगत न वह प्रकारा पंडित वेद पुकारा, गिस्ती गिस तरमाता एक लूक ना देवे दरसा, निर्हारी वर्त अपरसा। और इस तरह होर बहुत सारे जिन्ने भी धर्मां दे सारे काम चले हुए ने सारियां नूं गुरु साहब कहते हैं काटना किनी कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता। और गुरु साहब कहते हैं नानक गुरु शरण पर आता, कि मैं उस परमेश्वर की शरण विच आया, और शरण विच आने वाला शरणार्थी हुंदा है, और जिहड़ा शरणार्थी हुंदा है उसका कोई कब्जा नहीं हुंदा। शरणार्थी किसी के घर आ जाए, किसी की शरण विच आ जाए, उसका कब्जा नहीं होया करता, उसनूं उसका मालक कैसा भी रखे हो सकता, उसनूं मालक प्रसन्न होकर अगर वो शरण विच रहे तो बहुत सुखी कर देवे, क्योंकि बहुत बड़ा मालक है, बहुत बड़ा दयालु है। पर जदों असीं उसकी शरण की बजाय किसी होर पासे तुरदे हां, जिन्होंने गुरु साहब ने कई ढंगां दे नाल कहा कि भाई इस शरण तो मनुख किवें बचदा है, और शरण तो बचण तो बाद वो किस तरह के खेल खेलदा है। तो वो सारा जिहड़ा गुरु साहब कहंदे ने कि मनुख किते जाने अनजाने विच जिहड़ा वो अंधकार वाले पासे तुरिया जांदा है। और गुरु साहब ने उसनूं कहा मन की मत्ती खिंडियां बहुते पए असगा, गोते खाए न निकले, कि मन दी मत्तां इस तरह खिलर जांदियां ने जिस तरह अज समाज दी खिलरियां होईयां ने। सिखां विच ही कितने मत बने हुए सी, अज परमेश्वर ने गुरु ने कृपा करके वो सारियां नूं किसी ना किसी रूप एक कीता है। तो ये गुरु की अपनी कला है, परमेश्वर की अपनी कला है कि करोना पैदा करना और उस तो बाद इस तरह की मूवमेंट चलानी और उस तरह के लोगों के विच वो प्रेरणा भर देनी, क्योंकि सब के मनां दा स्वामी परमेश्वर आप है।
कोई दूसरे की गल नहीं जानता, एक दे मन की गल दूजी नहीं जानता, इको परमेश्वर अंतरजामी है। और गुरु साहब कहते हैं वो अंतरजामी परमेश्वर जो सब के दिलों की गल जानता है और उसने किस रूप समाज को तोड़ना है, ये मनुख के कर्मां ते आधारित होंदा है कि जो जो मनुख परमात्मा तो दूर होकर कर्म करता चला जाता है और एक तो बाद दूसरा, दूसरे तो बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा अटैच होंदे चले जाते हैं और उससे नू ही कलयुग बन जाता है। और जदों वही वेव दूसरे पासे चल जाती है तो उससे दा सतयुग उससे नू ही कहा गया है। ये मनुखों के कर्मां के आधार पर समाज का जो सिस्टम है उसके आधार पर कलयुग या सतयुग परमात्मा, क्योंकि परमात्मा मालिक सच्चा कर्म की खेल चाहता है और कर्मां का ही खेल उसने कहा कि जिहा बीजे सोलने कर्मा संदरा खेत। ये इत्थे धर्म कमान की जगह ये धरती जिहड़ी है धर्म किसी धरती छाप रखी धर्मसाल, कि धर्म कमान की किहड़ी जगह सी कि कर्मां विचों धर्म निकले। लोग धर्म विचों कर्म करते हैं पर गुरु साहब ने कहा कर्म विचों धर्म निकले। होरियों गंग बहाईयन दुनियावी आखे की क्यों कि दूसरे पासे उल्टी गंगा बहा दी। संसार धर्मां विचों कर्म कढ़ रहा सी, उन्होंने कर्म नूं धर्म दस्या कि कर्म किस ढंग के मनुख के होण। ये सारा सिस्टम जो समझदा होवे कि मैं अकल वाला मेरे कर्म कैसे होण तो कर्मां के आधार पर जिहड़ी गल मनुख समाज करेगा वो धर्म पैदा करेगा तो वो धर्म जिहड़ा है वो सारिआं नूं सुख देण वाला होएगा। उस धर्म की गल की है गुरु साहब ने। अते ये कहा भी जिहड़ा धर्म लोग मन रहे हैं, गुरु साहब ने कहा मैं इसनूं नहीं मनदा। इत्थे गुरु साहब कहते सृष्ट सब एक वर्ण हुई, धर्म की गत रही, सारी सृष्टि इको पासे तुरी जाती है। जो धर्म है उसनूं भुल्ली हुई है और धर्मां दे नाम ते अधर्म हो रहा है। इस करके गुरु साहब ने कहा सृष्ट सब एक वर्ण हुई, किसी एक की गल नहीं की, किसी दूजे की गल नहीं की, पूरी सृष्टि की गल की है कि भाई सारी सृष्टि इको पासे हुई चली जा रही है, धर्म के नाम ते ही अधर्म कर रहे हैं संसार। तो ये जो कंसैप्ट सी गुरु साहब ने ये सारा सतयुग हमेशा के लिए सी। और जदों भी मनुख नूं समझ आए, क्योंकि जो गुरबाणी है ये बहुत तपस्या तो बाद निकली है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं साधारण वो एक इतनी वड्डी क्रांति है जो साडी जो गुरु साहब जे आपां विचार करिए सारे ते एक एक महापुरुष जिहड़े 35 महापुरुष ने उन्हां दी करोड़ां वरे दी तपस्या उहदे विच होएगी। और उस तो बाद उस सिस्टम नूं इंपावर करने दे वास्ते कितनियां कुर्बानियां हुईयां, कितनियां कुर्बानियां जिहड़ियां हुईयां ने इन्हां नूं जोड़िया जांदा है देश दे नाल, इन्हां नूं जोड़िया जांदा है धर्मां दे नाल। पर जे गुरु साहब दी बेस में जाके गुरबाणी की गहराई में जाके खोज करते हैं 10 गुरु साहब के जीवन विचों, तां ये सारे दा सारा जिहड़ा सी ये सरबत दे भले दा जो एक कंसैप्ट निकलिया सी, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के रूप में साडे सामने विराजमान हुए सी, इस कंसैप्ट दे विचों जो कुछ निकलिया सी वो सारा जिहड़ा सी एक ओहदे पिछे ही शहीदियां हुईयां, ना कि उन्हां दा कोई कारण तत्कालिक कारण कुछ भी होए, पर ओहदा बेस जिहड़ा है एक पिता एक उसके हंबारक है। जितना ये दास नूं महसूस होया गुरु साहब ने करवाया उस हिसाब नाल आपां संगतां विश्वास कीती तां संगतां ने जिहड़ा उहदे विच काफ़ी उत्साह दस्सिया, क्योंकि साडा मुक्त सी कि भाई लीडरशिप जिहड़ी है लीडर असीं जदों गुरु नूं अपने हाजरा हजूर जाहरा हजूर कहंदे हां तां फिर किवें नहीं हो सकदा कि साडे लीडर नहीं है। क्यों नहीं असीं इन्हां दी शरण में जाके इन्हां विचारां दे अनुसार समाज नूं पैदा कर सकदे। तां ये चीज़ जिहड़ी सी जदों शुरुआत हुई तो गुरु फिर आप ही वरतते ने, जिमें जिमें वो चला रहे हैं तो उमें उमें आप चली जा रहे हैं। क्योंकि सिख का कम है गुरु की ओट लैके अगे तुरना, गुरु का आसरा लैके अगे तुरना, अरदास करके अगे तुरना और सच नूं समझना, सच ते विचार करना और उस दे अनुसार समाज खड़ा करना। जिन्ना दास महसूस होया कि समाज खड़ा करने का सारा ढांचा है और इसनूं किस रूप दे विच कंसोलीडेट करके अगे ले जाया जा सकता है आपां कोशिश की है। तो जिहड़ी आपां कोशिश की है बनाने की, उहदे पहला आपां लिखिया है कि सतयुग की आहट कि गुरु पातशाह जी चाहते सी कि ये संसार सुखी वसे और उसी नूं सुखी जदों लोग बसणगे उसनूं असीं हलेमी राज कहा, बेगमपुरा कहा, जिते किसी नूं कोई गम नहीं है, छोटे वड्डे दा अमीर गरीब दा। वो सोचदा है कि किवें असीं मिल के सुखी हो जाइए। ये बेगमपुरा है कि गुरु साहब ने उन्होंने इत्थे ड्यूटी दी है, जिन्होंने समझ दी है, जिन्होंने किसी तरह की भी समझ दी है, क्योंकि परमात्मा हर समय समझ देने वाला है और वो हर समय ही सब दा गुरु है। तो इत्थे असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं इसकी रहमत का पात्र
ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੱਪਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ये बहुत बड़ा मैं समझदा कि गुरु साहब वालों एक बहुत वड्डी किरपा दा है कि वो इस चीज नूं संगतां दे सामने मंजूरी दे वास्ते रख रहे ने, और संगतां जदों विचार करांगे आपां धीरे धीरे फिर उस अनुसार ही इस नाल चलांगे आपां कि किवें इहदे बारे हो सकदा है। अपना टाइम टू टाइम अपनी क्लास विच आपां स्ट्रैटजी बयान करांगे जे सानूं लग्गिया कि इहदे विच गुरु दी किरपा पूर्ण तौर ते वरत रही है। तो इहदे च आपां लिखिया कि आपां बाकी धर्मां दे आगूआं नूं भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਅਰਥ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਜਗਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾੜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਬਰ ਭੇਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਦਾਰਾਂ ਜਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਮੱਧਮ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਧਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ परमात्मा एक खाते ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ उस कमाई ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ क्योंकि गुरु साहब ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ तो ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇਣਗੇ जो दास ਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦਾ है क्योंकि खेड सारा परमेश्वर ਦਾ ਹੁੰਦਾ है संसार ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ नहीं सकता ना ਕਿਸੇ ਦਾ है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच उससे ਦਾ सारा खेड है तो उसके बारे फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਧਰ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਸਨਮੁਖ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਵਚੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ तो जिस तरह का हुक्म होया जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो सुख आनंद रखियो ग्रह भीतर उठवाहू को दौड़ियो कि जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर मैं उस वाले उठ पासे ताके दौड़ पिया ते पर मैनू अपने अंदर जिहड़ा वो सुख ही महसूस होया गुरु साहब कहते ने कि जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर उठवाहू को दौड़ियो अपने मन में परमेश्वर ने सहज पा दिता सी और जैसा फिर जिधर उसने चलाया उधर चल पे तो वो गुरु समर्थ गुरु जिहड़ा वो किसी दे भी सिर ते हाथ धर के हाथ धरन दा कोई ये नहीं हुंदा कि कोई छड़ी धरनी या कोई हाथ किसी दे मथे ते टिकाना बल्कि उस सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया परमेश्वर आप किसी विच बोल जावे ये उसकी अपनी मर्जी है कि कितने सिंपल तो सिंपल ते मनुख दे विच बैठ जावे और बैठदा भी गुरु साहब अगर यही कहते हैं कि बस्ता टुटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना जात न पतना आदरू ध्यान पर मिन्ना मित्र न हिटदन रूपहीन की साक न सिन्ना राजा सगली शिष्ट का हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उधरे प्रभ होए सुप्रसन्ना कि जिससे परमेश्वर उधार हो जावे इत्थे आपां इह लिखण दी कोशिश कीती है जिसके कर दीवान हर होवे तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ लेकिन अगे जाना है वो जड़ा आम कॉमन मैन की सोच नाल अगे चलता है और एक स्ट्रैटजी नाल अगे चलता है एक प्रोग्राम नाल अगे चलता है उस प्रोग्राम नूं किस ढंग नाल बनाना है वो आपां सारा इहदे विच दस्सिया है तो उहदे जो अजे असीं उस चीज़ नूं सिर्फ खुलासा जरूर कीता है लेकिन उस चीज़ नूं उस रूप विच ही अगे लैके जाया जाएगा जदों कि सारा जिहड़ा आपां जिहड़ा इस विचार दे विच इह चीज़ रखी आपां हैप्पी अर्थ जिहड़ा है वो किवें हो सकती है फिर आपां जल्दी ही आप जी नूं अगे विचार करांगे कि इत्थे अगला पॉइंट असीं तां लीडरी नहीं सेवादारी लई संगतां नूं बेनती कि भाई लीडरी जिहड़ी है
ਉਹ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ओरिजिनलिटी ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਆਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਇਆ ਕਿ सिर ऊंचा नीवे चरण बेशक नीवे ने, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि भाई चरणों में शीश नवाया, भाव के जिहड़ा जिसनू समझ नहीं है और जिसनू समझ है, समझदार ने बेसमझ नूं उपर चुकना, इस चीज नूं आपां लिया लीडरी नहीं सेवादारी लई संगतां नूं बेनती। फिर अगे आपां लिखिया अकाल तख्त का कंसैप्ट जिहड़ा है वो की है। अकाल तख्त है अकाल पुरख वाहिगुरू दा तख्त, उसका नाम अकाल तख्त का मतलब है कि जिथे अकाल है वो अकाल किसी एक का नहीं हुंदा, वो तख्त भी किसी एक देश इस कौम किसी एक मनुख का नहीं हो सकता, पूरे संसार का तख्त हुंदा है। और इससे तख्त का मतलब भी राजनीति सी कि इस तख्त के उत्ते परमात्मा के अधीन होके गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा के उत्ते या उन्हां उस विचारधारा के उत्ते जो सरबत के भले वल जांदी है, सारियां नहीं वो कहा गया है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब का असीं नाम क्यों रख रहे हैं, कोई बायज्ड होके नहीं रख रहे, पर क्योंकि इहदे विच वो प्रिंसीपल हत्थां नाल लिखिया मौजूद है, क्योंकि उस तो पहला महापुरुषां नूं उन्हां हरना बाजां ते सिखदारां ने यह संदेश अपने हाथ नाल नहीं लिखण दिता। इस करके असीं ये चाहते हाँ कि अकाल तख्त जिहड़ा है वो पूरी मनुखता दा होए, पूरी मनुखता लई ऐसा संदेश पैदा होए, उत्थों एक सिस्टम ऐसा बने कि जिथे कोई भी मनुख जिहड़ा है वो अपनी डोमिनेसी ना कर सके। ये सारे प्रोग्राम जिहड़ा है आपां इह दस्सण दी कोशिश की है। अकाल तख्त है अकाल पुरख वाहिगुरू दा तख्त, और इत्थे असीं ये डिस्कस हल्का जिहा करन दी कोशिश की है। और उस तो बाद जथेदारां नूं भी असीं ये बेनती की है कि सारे कोई भी जथेदार जिहड़ा है वो एक सेवादार हो सकता है। जथेदार सब तो पहला ये फार्म भरन कि असीं भाई सिंपल आदमी आ, गुरु दे सिखां, जे असीं शरण विच रहना सिखांगे और शरण विच रह के करांगे बिना किसी राजनीति तो फिर वो अकाल दा तख्त है और फिर उत्थे वो सिस्टम सारा चल सकता है। नहीं तो इसनूं हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट का रूप जिहड़ा आपां देण दी कोशिश की है कि उस सिस्टम नूं बदलण दे वास्ते एक हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट तैयार की जाए जिहड़ी कि पूरे संसार नूं नुमाइंदगी दिंदी होवे, पूरे संसार दे सिखां नूं नुमाइंदगी दिंदी होवे और उस विच इतने मनुख होण, ये भी सारी विचार अधीन गल है। ये आप जी जरूर कृपा करोगे। और दूजे भाग च असीं फिर दस्सिया कि संगत की जिहड़ी महानता है, क्योंकि जो गुरु साहब ने संगत नूं महान दिता है और इस करके जोड़ा भी सिस्टम तैयार होए वो संगत वालों होवे, संगत वास्ते होवे और संगत राही होवे। इस सिस्टम च होए कि जदों ना कोई वैरी नहीं बिगाने की गल कीती है। और गुरु साहब कहंदे भी एक जदों तुसीं गुरु दे अगे मत्था टेक दिता, मत्था रख दिता, तां फिर तुहाडे मन विच ये जरूर आना चाहिए है कि मेरा गुरु ही वड्डा है। और इसलिए कोई मनुख मनमानी ना कर सके। जे संगत नूं वड्डा कीता है ते संगत विच नाराजगी क्यों हो रही है, तो इत्थे जिहड़ा सोचना है लीडर ने, अगर संगत नाराज हो रही है किसी गल तो भी तां लीडर अपने आप जिहड़ा हथ जोड़ देवे, एक बार भी ना कहे कि भाई मैं ही इत्थे लीडरशिप करनी है। ये सिस्टम तैयार होए जिह च आपां इसनूं मनमानी का अंत किवें करना है कि कोई भी मनुख जिहड़ा है गुरु दे नां ते अपनी लीडरशिप करने की कोशिश ना करे, क्योंकि संगत नूं वड्डा कीता है। संगत विचों अगर एक बंदा भी लीडरशिप तो नाराज है तो 5 बंदियां दी अपनी शर्त रखी है, संगत विचों 5 बंदे नाराज ने तो इसका मतलब गुरु नाराज है, मैनू उत्थे राज धक्के नाल राज नहीं करना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। उहदा ऑप्शन की हो सकता है। तो ये अगे फिर आपां एक तर सुहावी लई तुहाडी की राय है, तो इस क्लिक ते करके अपना राय दसो जिहदे विच आपां जिक्र ये सारियां गल्लां जिन्नियां कीतियां ने इन्हां नूं एक छोटे रूप दे विच 4-5 लाइनां दे विच लिख के यस या नो करवाइए कि तुसीं इस गल नूं ठीक समझदे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब भी साडे रब राजा लीडर होण, कि तुसीं इस गल नूं ठीक समझदे हो कि सारियां कुर्बानियां सरबत दे भले वास्ते सी, और कि तुसीं समझदे हो कि असीं गुरु साहिब दा जो मेन प्रिंसीपल है
उस तो भटके हाँ। तो ये चीज़ां दे 7 छोटे छोटे क्वेश्चन है जिस आपां संगतां नूं यस या नो करन नूं जिहड़ा बेनती कीती है। ते उहदे अनुसार फिर अगे जिहड़ा तीसरा भाग है वो असीं तीजे भाग विच फिर सिख नूं मरजीवड़ा जिहड़ा है वो बन के किवें इस सिस्टम नूं सारे वो अपना असीं उस नूं कर सकदे हां कि मरजीवड़ा सिख किवें बनेगा कि जदों एक सिख भला करेगा, जो गुरु साहब ने भगत की वड्डी व्याख्या दी है कि मत हुंदी होए आना ताण हुंदे होए निताणा, तो वह भला करने का मन करता है कि जो मेरे गुरु साहब ने शहीदियां दे दित्तियां, मेरे गुरु ने इतनी भलाई की, घर बार छड्ड के चला जाए तो मैं क्यों ना भला करा। तो उस सिख के अंदर जो भला करन दी वो आंदी फिर वो करदा भला, लेकिन उत्थे एक माया जाल वरत जाता है कि गुरु साहब ने कहा कि भला करदे होए मनुख नूं महसूस होना लग जाता है कि भाई मैं एक समाज का एक तरह भला कर रहा वां, ते उत्थे सह सुभाव भला ते करदा है और गुरु के खाते विच भी पैंदा है। पर जिहड़ा परमात्मा का माया जाल है उत्थे गुरु साहब कहंदे ने भी मनुख के अंदर जिहड़ी सूक्ष्म होमे वे वो भला कहाउण दी बन जाती है कि भाई मैं भला कर रहा वां। तो ये जिहड़ी होमे वे उसका जिहड़ा वो भला करदा है उस नूं किधरे ना किधरे गुरु साहब कहंदे ने कि जो मैं कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर बेल, कि जिस तरह एक बैल गुरु साहब ने उदाहरण दी है कि इस तरह एक बैल जिहड़ा है वो चलता है एक हल विच जुटिया हुंदा है, खूह दे फेरे जुटिया हुंदा है और जुटदा उत्थे जिहड़ा है वो लगातार चलता रहिंदा और पानी खूह दीआं टिंडां चों मेहनत करके पानी कढदा है और जिस वेले पानी उहदी खेती नूं आंदा है और उसदी अखां तो पट्टी उतरदी है, उहनूं विचरण दा मौका मिलदा है ते ओह बेलां जिहड़ियां ओहदे मेहनत दे नाल पैदा होईयां सी उन्हां बेलां नूं ही ओह बैल खा जांदा है। तो इस तरह गुरु साहब ने कहा है कि यह जदों मनुख मेहनत करदा है भले दा काम करदा है और जिहड़ी इहदे विचों पैदा हो जांदी उसदी हौमे जिहड़ी है उसदी उस खेती नूं जिहड़ा ओह खा जांदी है, उसदी ही पैदा कीती हुई मेहनत नूं उसदी ही हौमे खा जांदी है। तो इस करके उस रोग तो बचाने दे वास्ते गुरु ने दिता सी कि ये आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे, इस सिद्धांत इससे करके तसी पाई ये तेरे अंदरों किस तरह वह में निकल सके तू भला करें पर तेनू भी ना पता चले किस ढंग दे नाल तू भला कीता है, किस दा तू भला कीता है और किस दा भला होया है। बस इहदे विच मनुख दा मन गुरु दे चरणों में समाया रहेगा और उस समाज विच इस ढंग दे नाल विचरेगा कि वो चढ़दियां कलां जिसनूं कहा गया है। एक चढ़दियां कलां हुंदियां ने जिहड़ियां हंकार विचों पैदा हुंदियां ने, एक चढ़दियां कलां हुंदियां ने जो मनुख दे सहज विचों पैदा हुंदियां ने। सहज विच रह के मनुख जिहड़ा है वो अपना अगे तुरदा है जिहदे नाल एक सिस्टम, एक बस सिस्टम की गल कीती है, किसी परसनल मनुख ते लागू नहीं हुंदी, ये पूरे समाज ते लागू हुंदी और समाज नूं बदलण दी ही गुरु साहब ने गल कीती सी, ओहदा ही सिद्धांत दिता सी सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन। तो इत्थे इस चीज नूं भी आपां जरूर थोड़ा बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। उस तो बाद इस तो बाद जिहड़ा आपां सब दा सारियां दा फिर साडा इक्को ही निशाना होना चाहिए है कि आपां उस सिद्धांत नूं लैके सब सुखाली उठिया ये हो हलेमी राज जियो, इस हलेमी राज दे वास्ते ह्यूमन इक्वलिटी दे सिद्धांत ते कि संसार पूरा उतरे और इहदे विच किस तरह कितने कितने वीर इहदे विच शामिल होण आपां ओह कोशिश करन दी कोशिश की है कि ਉਹਦੇ ਚ ਮਰਜੀਵੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰ ਸੁਹਾਵੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ एक कंट्रोल आए समाज का, जो एक्चुअली पढ़े लिखे ने और जो एक्चुअली चाहते हैं समाज का भला होवे, कोई ऐसे लोगों के हथ में कंट्रोल ना होवे जो कि उस कंट्रोल नूं अपने हथ में करके और अपनी मर्जी नाल अपनी अकल नाल चलाते हैं और अकल गुरु दी रहे, सिद्धांत गुरु का रहे और समझ मनुख दी रहे। इत्थे आपां उन्हां नूं स्कॉलर्स मरजीवड़े कहा जिहड़ा ये समझ सकण कि सेवा करत होई नहकामी इस तरह का उन्होंने दे अंदर भावना आए। ये चीज भावना पैदा करनी है, इसकी प्रैक्टिस है कि जदों मनुख बदलेगा फिर प्रैक्टिस करनी पैंदी है क्योंकि जो जिस पासे हुण प्रैक्टिस तुर रही है थोड़े पासे मोड़ आंदिया थोड़ा समा लगता है और परमेश्वर जूं जूं हुंदा है। तो गुरु साहब कहते हैं जैसी भूख
तैसी का पूरक सगल पटाका स्वामी। जैसी मनुख नूं भुख लगदी है, जिस पासे भुख लगनी शुरू होंदी है, परमात्मा की एनर्जी उस पासे तुरनी शुरू हो जाती है। तो इत्थे गुरु साहब कहते जैसी भुख तैसी का पूरक। उस आधार से असीं कहा कि मनुख की जो भुख होएगी कि मैं सेवा करदा निकामी होवां और इन्हां सिद्धांतां ते उतरां तां उधर परमेश्वर की एनर्जी कम करनी शुरू कर दिंदी है, समाज बदलना शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर ते असीं पहरेदार मजीबड़ियां दा जिक्र किया। पहरेदार मजीबड़े असीं उन्हां नूं कहा कि अज जो गुरु घरां दे प्रबंधक ने, ग्रंथी ने, रागी ने, प्रचारक ने, इन्हां ने पहरा इस गल ते देना, इस गल वाल इन्हां नूं तोरिया जाए उस हैप्पी अर्थ दे राहीं, हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट दे राहीं कि वो एक सिस्टम बदल के इन्हां नूं इस पासे तोरिया जाए कि असीं इस गुरु की गल ते पहरा देना है। जो समाज की बनतर गुरु साहब ने दसी सी, इस गल ते उन्हां नूं पहरेदार होण, उन्हां नूं पहरेदार दा फार्म भरन और ये सारा जो भी है वो गुरु की हजूरी विच संगत मंजूर करे कि एक्चुअली यही गुरु साहब सिस्टम चाहते सी। और इसनूं उपर तो हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट दे राहीं, क्योंकि अकाल तख्त दे राहीं, लेकिन उत्थे सिस्टम नूं बदल के असीं हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट का कंसैप्ट दिता है, जो कि संसार दे वो मनुख होण जिहड़े कि चोटी दे होण, जिहड़े पूरे धर्मां जिस तरह खालसा एड वाले विचरते हैं या ओबराय साहब विचरते हैं या होर बहुत सारिया हस्तियां ने, उन्होंने हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट का सद्दा दिता जाए कि भाई तुसी हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट बनाओ और तुसी इस ढांचे इस ढंग नाल खड़ा करो और सहज सुभाव संगतां तुहानूं प्रवान करनगियां, क्योंकि संगत गुरु साहब ने ऐसा माहौल बना दिता है। तो इत्थे असीं इन्हां नूं पहरेदार विच रखिया है, जो कि अज साडे रागी टाडी प्रचारक कीर्तनीय ने ये उस रूप च ना होए कि इन्हां नूं ये लालच होए कि सानूं कोई पैसा देवे या इस तरह दे जिहड़ा जो माहौल बन चुकिया है ये गुरसिੱਖੀ दे सिद्धांत तो बिल्कुल उस तरह बिल्कुल गुरु के सिद्धांत नाल मेल नहीं खाता कि कोई गुरु की गल करे और उसनूं ये भी नाल गिनना पे कि मैनूं माया किवें मिलेगी। माया गुजराण दे वास्ते हैप्पी अर्थ पार्लीमेंट वालों हर सिख नूं, हर पहरेदार नूं जिहड़ा वो माया देनी है, किवें देनी है, ये सारा सिस्टम उपरों चले, ना कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम उस गुरु आशे अनुसार नहीं है। फिर आपां तीसरे नंबर ते रखिया लीडर्स मरजीवड़े। लीडर्स जिहड़े ने वो लोग होने चाहिए ने जिहड़े धार्मिक और राजनीतिक मरजीवड़े लीडर जो योजना समाज में लागू करनगे। कोई इलैक्शन के नाम नहीं कि मेरा इलैक्शन होवे, मैं इलैक्शन नहीं, बल्कि एक तो उल्टा चले जो गुरु साहब ने उल्टा काम चलाया सी कि भाई एक असीं कहंदे कि इस बंदे दे हक में ज्यादा वोटां पईयां, असीं ये चाह रहे हां कि अगर दो बंदे खड़े हुंदे ने उन्हां दे विरोध विच किन्नियां वोटां पैंदियां ने, दो बंदे पहला अच्छे खड़े होण और फिर संगत नूं दस्सिया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बने कि भाई कितने लोग इसके विरोध विच हन, जिसके विरोध विच ज्यादा लोग ने वो आटोमैटिकली बैठ जाए, कोई इस तरह का सिस्टम होवे। अगर एक नूं 5 ने स्वीकार किया, एक नूं 4 ने स्वीकार किया तो 4 वाला अपने आप ही हाथ जोड़ देवे कि 5 जिसका विरोध घट लोगों ने 4 ने अगर विरोध 4 ने किया है तो उसनूं पहल होनी चाहिए है, जिसका विरोध 5 ने कर दिता उसकी पहल नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सिस्टम होवे कि इस तरह का वोटिंग सिस्टम उल्टा चले कि भाई सिलैक्शन होवे, इलैक्शन नहीं। पहला तो सिलैक्शन इस लैवल की होवे कि एकदम उस मनुख नूं स्वीकार कर लिया जाए, पर जे अजे तक कोई माहौल नहीं है तो उत्थों शुरुआत इवें हो सकती है कि नैगेटिव वोटां गिनिया जान, पॉजिटिव जो नहीं वोट पाता है मतलब पॉजिटिव है, जो वोट पाए नैगेटिव वोटां ही पैण ते जिहदे हक में ज्यादा नैगेटिव वोटां पैण उसनूं अपने आप ही पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा सिद्धांत होए। फिर उस तो बाद सुपर मरजीवड़े जिहड़े ने आपां उन्हां नूं सुपर मरजीवड़े उन्हां नूं कहा, एग्जीक्यूटिव उन्हां नूं कहा जिन्हां दे बारे गुरु साहब कहंदे ने कि गरीबी गदा हमारी खन्ना सिगल रंछारी सागे को ना टिके विकारी गुर पूरे ए गल सारी। कि गुरु साहब ने एक हथियार दिता सी कि भाई जिस वेले समाज बहुत ज्यादा विकारी हो जाएगा तो जे ये गदा चक ली जाए गरीबी जो अज सिख ने चक्की है, अज असीं देखते हाँ कि जे कुंडली बॉर्डर ते या ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते सिख बैठा है तो बहुत सारी गरीबी गदा दे विच बैठा है और उत्थे जिहड़ा है वो अपना उस रूप में किसी ना किसी वरत रहा है। गुरु की ही कोई कला है, परमेश्वर की अपनी कला है कि एक गुरु साहब ने सिद्धांत दिता सी कि भाई जदों बिल्कुल ही सारी गल तो अगे लंघ जाए तो पूरा समाज इस गल ते खड़ा हो जाए। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेणछारी इस आगे को ना टिके विकारी गुरपूरे ए गल सारी। कि मन दे विचों जिहड़ी सहज गुरु साहब ने बख्शिया है, मन नीवा ते मत उच्ची बख्शी है, उहदे विचों गरीबी की गदा चुक ली जाए, हथियार चक्या जाए गरीबी का, नम्रता का हथियार चक्या जाए, खन्ना सगल रेणछारी
ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਦਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਨੇ ਵਾਲੇ, ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਏ ਰਹੇ ਮਨਵਾ, ਸਗਲੇ ਦਿਸੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਮੱਦੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾकुर, ਦਾਨ ਦੇ ਸਬਜੀ ਸਮਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹੰਬਾਰਕ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ ਸੁਹਾਵੀ ਦੇ ਚਾਵਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਅਰਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ DV ਦਾਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੂਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਅਰਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਜੀਵੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੋ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹੈਪੀ ਅਰਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਅਰਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ
दयालु है पर अपने नियमां दा पक्का है। जदों साडा रुख उधर नूं हो जांदा है तां परमेश्वर फिर आप ही साडे ते किरपा करनी शुरू कर दिंदा है, क्योंकि जैसा भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी, कि जैसी मनुख नूं भुख लगदी है वैसी ही उहदी पूरी करदा है। जन नानक प्यास लगी दर्शन की, पर मिलिया अंतरजामी। मिलना तो नेता है जदों दर्शनां दी प्यास इस आधार ते हो जावे, और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। और बहुत उच्ची अवस्था है, गुरु साहब कहंदे भी उस अवस्था तक मनुख पहुंचदा नहीं और हेठा ही भटक जाता है। इस करके हेठा समाज नूं सुखी करने का प्रोग्राम बना लिया जाए, क्योंकि वो अवस्था वो आप ही देवेगा, किसनूं देवेगा, किस वेले देवेगा। और जदों ये सिस्टम चलदा है फिर परमेश्वर नूं मिलदियां जिहड़ा है, क्योंकि सिस्टम दे विच जदों परमेश्वर दे अंदर ये मनुख दे अंदर आएगी तो नैचुरली जिहड़ा मनुख संसार विच आएगा, परमेश्वर नूं मिलण दे वास्ते आया है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ਵੱਡੀ कोशिश नहीं करनी पेगी। सह सुभाह ही परमेश्वर ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आया चिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तेन गुरह कमानो मनता। कि जिस ते परमेश्वर की दया हो जाए वो गुरु दे इस मंत्र ਨੂੰ कमा लवेगा। ਅਤੇ गुरु साहब कहते हैं उसकी किरपा के नाल ही फिर उसका मेल हुंदा है। वही कृपालु है, उसकी किरपा तो बिना उस तरह मिलना बिल्कुल इंपॉसिबल है। और अगर वो कृपा करे तो वो एक अनपढ़ नूं भी पढ़िया लिखिया बना के मिला देवे। एक उसे नूं भी नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सूझे, जे तिस बिन कोई करे, ਉਹਦੇ तो बिना होर कोई एक काम कर ही नहीं सकता। फिर वो आप ही अपनी कृपालु है, दयालु है, गुर प्रसाद है। होइयां भुल्लां चुकन दी क्षमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।